آج ہم منظر قیامت کو بیان کر رہے ہیں جو کہ مومن کا منظر ہے۔ قیامت کے دن مومن کا منظر جنات عدن کی صورت میں ہوگا، انعامات کی وصولی کی صورت میں ہوگا، رب کائنات کی رضا کی وصولی کے زمرے میں ہوگا اور رب ذوالجلال کے دیدار کی صورت میں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کائنات قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، دنیا والو آخرت کا جو دن ہے وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا بھی ہے۔ دار کا معنی گھر ہے، عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی گھر ہے۔ ایک گھر مومن کا گھر جو کہ جنت ہے، ایک گھر کافر کا گھر جو کہ دوزخ ہے۔ تو پہلا گھر جنت کا گھر ہے۔ یہ گھر جو ہے ایمان والوں کے لیے ہے، یہ گھر جو ہے اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے ہے، یہ گھر ان لوگوں کے لیے ہے جو قبر کے اندر منکر نکیر کے صحیح سوالوں کے جواب دینے والے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے آقا دو عالم حضور سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میت کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو فرشتے ان سے 3 سوال کرتے ہیں، من ربوں کا، ما دینوں کا اور من نبیوں کا۔ یہ 3 سوال ہوتے ہیں قبر کے اندر۔ پہلا جو سوال ہے اس کا جواب بھی آپ نے بتا دیا، دوسرے سوال کا جواب بھی آپ نے بتا دیا، تیسرے سوال کا جواب بھی آپ نے بتا دیا۔ ایمان والو آقا علیہ السلام کی عنایات پہ قربان جائیں۔ کائنات کا سب سے مشکل ترین پرچہ جو انسان کو فلاح و بہبود سے دوچار کرے گا، جو آخری زندگی کو سنوار دے گا، اس کے آپ علیہ السلام نے سوال بھی بتا دیے اور سوالوں کے جواب بھی بتا دیے، اور فرمایا جو ان سوالوں کے جواب صحیح طریقے سے دے لے گا رب کائنات کے حضور سے فلاح پا جائے گا۔ ایمان والو کائنات کا کوئی بھی امتحان جو اس کو امتحان سے پہلے سوالوں کے جواب پرچہ آؤٹ ہو جائے تو دنیا والے اس پرچہ دینے والے کے جتنے بھی افراد ہوں گے تمام کو ناکامی سے دوچار کر دیتے ہیں، لیکن یہ ایسا پرچہ ہے جو آؤٹ بھی ہو گیا اور سوال بھی صرف 3 ہیں، کوئی سوال بھی اتنے نہیں ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلا سوال من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ پہلا سوال من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو اس کا جواب دین الاسلام۔ تیسرا سوال ما تقول فی حق ھذا الرجل، بعد لکھا کہ من نبیوں کا ہے اور بعد لکھا کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل۔ آقا علیہ السلام قبر انور کے اندر تشریف لاتے ہیں، میت کی سر کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ فرشتے اس میت سے مخاطب کہتے ہیں انظر الی ھذا الرجل، اس انسان کی طرف دیکھو، اس شخصیت کی طرف دیکھو، یہ انسان جو باللیل کی زلفوں والا ہے، جو مازاغ کے کاجل والا ہے، جو شمس والضحیٰ کے چمکیلے چہرے والا ہے، اتنا حسین و جمیل، حسینہ جمیلہ دے منہ موڑ دیتے محمد بنا کے رب کائنات نے قلم توڑ دیتے۔ اتنا حسین و جمیل، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ اس کو تو جانتا ہے؟ جس کا والضحیٰ کا مکڑا ہے، باللیل کی زلفیں، مازاغ کی آنکھیں، جو اتنا حسین، اتنا حسین۔ ایک عرابی حرم پاک میں حاضر ہوتا ہے، اوائل اسلام کی بات ہے، جب حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہاں آقا علیہ السلام بھی موجود ہیں، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا، صرف دیکھا نہیں تھا آقا علیہ السلام کو۔ جب حرم پاک میں آیا
तवाफ़ हो रहा था, आका अलैहिस्सलाम उस इराबी को देखा तो मुस्करा पड़े। जब मुस्कराए, उस इराबी ने समझा कि शायद ये मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। वो आपसे मुखातिब कहता है, मुझे मजाक करते हो? मैं भी इस तवाफ़ से फारिग होकर मैं अल्लाह के नबी को तुम्हारी ज़रूर शिकायत लगाऊंगा। आप मुस्कराए, फरमाया जाओ लगाओ, अभी लगाओ जाकर। कहता है मैं ज़रूर शिकायत लगाऊंगा। फरमाया अभी जाओ, जाते क्यों नहीं हो, शिकायत जाकर लगाओ। उसने कहा मुझे इस काबा के रब की कसम है, ऐ मेरे मजाक उड़ाने वाले, अगर तेरे जैसा हसीन मेरी आखिर को देखा होता पहले तो ज़रूर जाकर उसके बाद शिकायत लगाता, पर तो सोना ही इतना है, तो खूबसूरत ही इतना है, तो बिन देखे जिस मोली दुनिया जिड़ा देखे ओ कट जावे, आजम एडा सोना माई सानू किधरे भी नजर नहीं आवे। बिन देखे जिस मोली दुनिया जिड़ा देखे ओ मिट जावे, आजम एडा सोना माही सानू किधरे भी नजर नहीं आवे। आपने फरमाया वो भुले, ऐ मेरे यार मैं तो वो नबी हूँ, आप मेरे पास शिकायत लगा ले। उसने सुना कि आप ही आका अलैहिस्सलाम हैं तो परवाने की तरह टूट कर आपके कदमों के साथ चिमट गया। आपने गुलाम को उठाया, सीने से लगाया, फरमाया बोल क्या चाहता है। उस गुलाम ने अर्ज़ की, हुजूर अगर मैं इस्लाम कबूल करूं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? और तो माशाअल्लाह बड़े फयाज नजर आते हैं, मुझे क्या मिलेगा? तो आपने फरमाया तेरे साथ मेरा वादा है, तो आज इस्लाम कबूल कर ले, कल क़यामत का जब दिन होगा ना, मैं तुम्हें हाथ से पकड़ कर ना अपने सांस मिलाकर जन्नत फिरदौस के अंदर दाखिल फरमा दूंगा। अब ये बात हो ही रही थी कि अल्लाह का जिब्रील फरिश्ता आ गया। उसने अल्लाह का सलाम दिया और हज़रत यासूस सल्लम, अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ महबूब, जो भी तुम्हारे पास आता है, जो भी आता है, ऐ कमरी वाले, तो उसको जन्नत में भेज देता है। कोई हमारे सवालों जवाब के लिए भी किसी को छोड़ दे। जब आपने ये बात सुनी तो उस आदमी से मुखातिब फरमाया कि मेरा रब कहता है, ऐ इंसान, उसने तेरे से हिसाब लेना है। वो बंदा कहता है, या रसूलल्लाह मैं दीन तो कबूल कर लिया है ना, इस जिब्रील को कह दो, जाकर रब को जाकर कह दे कि ऐ रब, अगर तू कल क़यामत वाले दिन मेरा हिसाब लेगा तो मैं तेरा भी हिसाब लूँगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक आँखों से तर हो जाती है, और फरमाया ऐ इंसान, ऐ बंदे, तू तो इंसान है, तू तो बंदा है, रब तो इससे जवाब ले सकता है, हिसाब ले सकता है। वो रब्बुल आलमीन है, कायनात का मालिक है, हशर के मैदान का मालिक है। ऐ इंसान, तू उससे क्या हिसाब लेगा? तो बंदा अर्ज़ करता है, या रसूल सल्लम, मैं हिसाब ये लूँगा कि रब को हशर के मैदान में ये कहूँगा कि ऐ अल्लाह, मैं अपने गुनाहों को लेकर आ गया हूँ, तूने हिसाब ले लो मेरा, तो मैं गुनाहों को लेकर आ गया हूँ, एक पलड़े में मेरे गुनाहों को रख दे, और तेरा हिसाब ये है कि दूसरे पलड़े में अपनी ज़हमत को रख दे। अगर मेरे गुनाह बढ़ जाए तो दोज़ख में भेज दे, अगर तेरी रहमत बढ़ जाए तो जन्नत में भेज दे। अल्लाह अकबर। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये सुना तो क्या मंजर पेश आया, जिब्रील फिर हाजिर हो गए। इब्न नबी वसल्लम, अल्लाह का सलाम कबूल हो। रब्बे कायनात फरमाता है कि या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस अपने बंदे को कह दो कि मेरे साथ ये बात करे, मैं इसका हिसाब नहीं लूँगा ये कल क़यामत वाले दिन मेरा हिसाब ना ले। अल्लाह अकबर। ये जन्नत किन लोगों को मिलेगी? उन लोगों को मिलेगी जो सवाल का जवाब देंगे। तो मुनकर और नकीर जो थे, उन्हें पूछते हैं, ये जो बंदा खड़ा है तेरे सामने, ये शख्सियत जो है, इनको पहचानता है? जब आशिक़ मुस्तफ़ा उस शख्सियत को पहचानेगा, आपको पहचान वाला बंदा जब पहचानेगा ये तो मेरे आका हैं, तो तड़प कर आपके कदमों से लिपट जाएगा, फरिश्ते उठाते रहेंगे, सर को नहीं उठाएगा, उनसे मुखातिब होकर कहेगा, कब्र में जब सरकार आए तो मैं उनके कदमों पे गिरूं, फरिश्ते गर उठाएं तो उनसे यूं कहूं,
इनके पाए नाज से मैं ऐ फरिश्तों क्यों उठी हूँ, मर के तो पहुंचा हूँ इसी दिलरुबा के वास्ते, मर के तो पहुंचा हूँ इसी दिलरुबा के वास्ते। ईमान वालों, ये आखिरत का घर जो है ये मोमिन के लिए अल्लाह की रज़ा का भी है और उसकी जन्नत फिरदौस में दाखिल होने का भी है। जब वो जवाब दे लेगा तो रब्बे कायनात की तरफ से आवाज़ आएगी, आसमान से किसी की आवाज़ आएगी, ऐ फरिश्तों मुनकर नकीर इसको छोड़ दो, ये सच्चा है, इसके लिए जन्नत के बिछौने बिछा दो और इसके लिए जन्नत और फिरदौस के दरवाज़ों को खोल दिया जाए। हशर तक उसी जन्नत के महक को महसूस करता रहेगा। फरमाया कि नम कनामा नम कनामा तलुरूस। अब ये खुदा जब जवाब दे देगा तो अल्लाह ताला से कहेंगे अब ऐसे सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सो जाती है। तो क़यामत का दिन मोमिन के लिए अल्लाह की रज़ा का दिन है। हदीस पाक में आप ताकर इरशाद फरमाया, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जब दोज़खी दोज़ख में चले जाएंगे, तो रब्बे कायनात की तरफ से जन्नतियों की एक मेहमानी होगी। पहली मेहमानी वो कैसे होगी कि जन्नत के बागों के अंदर जो बाग किस हिस्से में जितना भी आएगा उस बाग के अंदर तख्त बिछा दिए जाएंगे। हीर वजवाहरात के जराओ सोने चांदी के बड़े मुरस्सा मुज़य्यन तख्त बिछा दिए जाएंगे और उन जन्नतियों को ताज पहनाकर उनको पर बिठा दिया जाएगा। उनके सामने शराब तहूरा होगी। रब्बे कायनात मेहमानी की अजीब व गरीब इनामात बेतहाशा होंगी और रब्बे कायनात की तरफ से आवाज़ आएगी, ऐ मेरे बंदो तुम आ गए हो, जो कुछ मैंने तुमको दिया है ये तुमको काफ़ी है, पसंद है, बहुत कुछ है। सभी कहेंगे इलाही हम राज़ी हो गए, हम तुझ पे राज़ी हैं, ऐ अल्लाह हमें तुमने वो कुछ इनायत किया जो हम सोच भी नहीं सकते थे, हम सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन रब फरमाएगा अभी मैं राज़ी नहीं हुआ, तुम्हें और इनाम देता हूँ। मैं आज ऐलान करता हूँ कि तुम तो मेरे पे राज़ी थे, आज मैं भी तुम पर राज़ी हो गया हूँ और आज मैं तुम्हें अपनी सबसे बड़ी नेमत अता करता हूँ कि आज तुमको मेरा दीदार नसीब हो जाएगा। ईमान वाले अगर इन नेमतों को हासिल करना चाहता है तो गफलत की ज़िंदगी को छोड़ दे। वे जवानी ऐब करन तू यारा ना शर्मानो, ਹੁਣ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਐਬੂ ਹੱਟ ਖਲੋਵੇਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਾਗ ਦਿਲੇ ਦਾ ਸੁੱਕ ਗਈ ਹੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਪਿਛਲੀ ਰਾਤੀ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਜਣਾ कभी खू अखियाँ दे झूमे हा। ये है मोमिन का आखिरत का दिन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।